Central Railway Minister Suresh Prabhu visited Garrison, announced 551 crores of railway work. Forest development workers angry over illegal recruitments. Hundreds of workers protested in Kodwar. Samajwadi Party getting ready for 2017 Uttarakhand polls. Mulayam daughter-in-law Arpana Yadav visited Haridwar party office, warmly welcomed by workers. Uttarakhand Purv Sainik Nigam workers on strike. Problem for public increasing day by day in various departments. Bus travellers faced a lot of problem today. Uttarakhand Roadway Workers Union on strike. Good evening, I'm Sakshi Senwal and you are watching HNN 24/7. Central Rail Minister Suresh Prabhu reached Garrison today and there he was warmly welcomed by the BJP leaders. Suresh Prabhu also laid foundation stone of lifts and escalators for Dehradun and Haridwar railway station, which will benefit the special disabled people. लगातार उत्तराखंड में जो लागत की जा रही है उसमें वृद्धि होती जा रही है। अगले साल और भी वृद्धि की जाएगी और ये परियोजनाएं जब पूरी होगी तो उसका लाभ पूरे Samajwadi Party leader and Mulayam's daughter-in-law Arpana Yadav reached Haridwar and accused PM Modi. She also questioned Modi's discussion on demonetization and said, "I never opposed PM Modi, but after his sudden discussion, it gave trouble to local people and make them suffer a lot." Arpana Yadav Haridwar visit also in light and Uttarakhand is going to vote in 2017. It is said that she is here for party's work. मुझे लगता है कि हमने और पर्सनली मैंने कभी मोदी जी का विरोध नहीं किया और मोदी जी का जो भी ये सोच है काले धन के प्रति वो एक सक्रिय सोच है, पर जिस तरीके से उन्होंने किया है ये काम और जिस तरीके से एक आम आदमी को परेशानी हो रही है उसके लिए मुझे लगता है कि ये ज़रूर आलोचना लायक है, क्योंकि ये अनस्ट्रैटेजिक मूव था। ये एक ऐसा मूव था जिसमें आम लोगों को, काले धन वाले लोग तो पकड़े नहीं गए मगर 74 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई और एक ऐसा मूव रहा जिसमें बच्चियों की शादियों में कई लोग वेंटिलेटर पे मर गए जिनके पैसे नहीं थे। तो एक अगर प्लान्ड वे में हो सकता। Residents and tourists are in for a difficult time as roadways, bus drivers and conductors across the state have decided to go on strike to press for their pending demands, including regularization of contract staff. Nearly 1,100 buses would remain off-road tomorrow. The transport services would be badly hit in the hilly trains and other cities of neighbouring state due to the proposed strike. जो हमने कहा था कल भी कि 70-80% संचालन पहले दिन बाधित हो जाएगा और जैसे जैसे बढ़ेगा हमारा उस बढ़ता रहेगा, दूसरे तीसरे दिन तक 100% हो जाएगा। तो वही हुआ, प्रदेश में आज इस टाइम 70-80% संचालन बाधित हो चुका। शाम तक उम्मीद है कि इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा ये, क्योंकि हमारे सारे कंडक्टर ड्राइवर और जितने नियमित भी हैं और आउटसोर्स के समेत। Uttarakhand Purv Sainik Nigam Limited workers are on strike. Today, thousands of workers encircled State Finance Minister Indira Hirdesh house at Haldwani, where Indira Hirdesh assured workers on their demand. The most problem can be witnessed in Haldwani Sushila Tiwari Hospital, as there are hundreds of Uttarakhand Purv Sainik Nigam workers. हम लोगों के जो हैं उपनल कर्मचारी जो हैं 740 के करीब हैं, जो ये नर्सेज होगी, टेक्नीशियन है, उसमें क्लरिकल स्टाफ है और वार्ड बॉय हैं, सफाई कर्मचारी हैं। तो बाकी तो हमने ओपीडी हमारी सुचारू रूप से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है ओपीडी में। तो मेन जो प्रॉब्लम आ रही है हम लोगों को आ रही है सफाई की।
सफाई कर्मचारी नहीं होने की वजह से अभी हम लोग ने अल्टरनेटिव व्यवस्था तो कर रखी है, बाहर से मंगा रखा है, मंगाए हुए हैं, वो भी लेबर क्लास ही हैं, प्रॉपर सफाई कर्मचारी नहीं है वो। हॉस्पिटल हैं जो कि वहाँ बीमार होते हैं और उनकी देख रेख करना आवश्यक है। तो एसटीएच के प्रिंसिपल डॉक्टर भैंसुरा जी से मेरी बात हुई थी और उनके द्वारा हमें बताया गया कि जो सफाई के लिए है, जो अनिवार्य रूप से सफाई में उपनल के भी लोग लगे हुए थे, उनको जो है बाहर से चार्ज पे रखा गया है। और इसके अतिरिक्त हमारे निगम के भी जो नियमित सफाई कर्मचारी हैं और संविदा हैं, उनको भी हमने उस पर लगाया है ताकि अस्पताल में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखी जा सके। Film star Sanjay Dutt has a bank account in Haridwar Shampur area branch of the Punjab National Bank. According to the bank, in 1992, on the name of Sanjay Dutt, the account was opened. Nominal account deposited into the opening of his account. However, since it made no deposit nor withdrawals, both the police and bank official to examine such accounts being cleaned denied. संजय दत्त का खाता 11 फरवरी 1999 में खुला हुआ है श्यामपुर में। वो एक विजिट के लिए आए थे यहाँ पर, कोई जमीन का मसला था तो उसको लेने आए थे, तब से उन्होंने ये खाता यहाँ खुलवा। अभी तक कोई आदान प्रदान नहीं है, जब से खाता खुला है सिर्फ 1000 रुपये इसमें बैलेंस है, उसके बाद कोई आदान प्रदान नहीं हुआ। खाता भी अब डोरमेंट हो चुका है, कोई संपर्क नहीं, कोई चिट्ठी नहीं। इस खाते का कोई ऑपरेशन ही नहीं हुआ तो जब से ऐसे ही डंप पड़ा हुआ है। संजय दत्त जी फिल्म अभिनेता जो थे, उनका हरिद्वार के एक प्रसिद्ध होटल व्यवसायी थे राजेंद्र सिंह रंधावा जी, उनका स्वर्गवास हो चुका है। उनके मित्र थे, तो उनका रसूलपुर मिट्टी बेरी में फार्म था, तो उनकी मित्रता के कारण उन्होंने भी 12-14 एकड़ ज़मीन वहाँ ली थी लगभग 1990 के दौरान। उसी समय उन्होंने अपने खेती की उपज के पैसे के लिए जो है हम पंजाब नेशनल बैंक श्यामपुर में एक खाता खुलवाया था कि भाई जो उपज। जैसा कि आप लोग विदित है कि आजकल नोटबंदी के उसमें ये बैंक वगैरह में सुरक्षा व्यवस्था हमें दिखवानी पड़ रही है। तो जब मैं इस संबंध में बैंक में गया तो मुझे वहाँ पे शाखा प्रबंधक साहब जेपी खिलन साहब से बात में जानकारी मिली कि यहाँ पे इस श्यामपुर ब्रांच में भी एक खाता जो है, एक सेलिब्रिटी हमारे जो ये आप जानते हैं ये संजय दत्त, तो इनका एक खाता है संजय दत्त जी का, और उस खाते में संजय दत्त जी का जो एड्रेस है तो वो खाता समसपुर कटेबड़ के उससे था। तो हमने जब इस बारे में जानकारी करी, उन्होंने हमें बताया कि उनका ये खाता है और काफ़ी पहले उन्हें खाता खुलवाया गया है, लेकिन तब से उसके बाद The transportation arrangement for Jaunsar Bawar hilly areas is going down by day. Overloading can be easily witnessed in the region. Government and Transportation Department is not noticing the serve issue and it may cause a heavy damage in the coming days. हादसे की वजह दूसरी भी होती है और हम लोग जो असेवित रूट है उनके ऊपर बहुत जल्द ही एक नीति लेके आ रहे हैं और कोशिश करेंगे कि अधिक जिम्मेदारी से लोग वहाँ। The walls to control the elephant in forest area is being constructed from past 8 years, but still the work is incomplete. Due to the reason, frequent clashes between elephants and vehicles being witnesses in Motichur Doiwala region. Even the Chief Minister Harish Rawat is angry over incomplete work. हम लोगों ने अब वो जहाँ पर छोड़ करके गए 2-2.5 साल में काम आगे बढ़ ही नहीं रहा है। अब तो मैंने यहाँ तक कह दिया है कि मैं बजरी उठाने दूंगा, रेता सब उठाने दूंगा, गाली मैं खाऊंगा, लेकिन तुम हमारी नेशनल हाईवे बना दो किसी तरीके से। ऐसा है कि यहाँ पर आप देखो 2-3 इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हमें खास करके तेंदुओं की संख्या में बहुतायत वृद्धि हुई है। राजा जी टाइगर रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जहाँ पर टाइगर के साथ साथ हाथियों का बहुत ही अच्छा हाथियों का और लेपर्ड्स का बहुत अच्छी संख्या है। लेकिन जो हाईवे विकास हो रहा है, खास करके अगर आप नेपाली फार्म से लेकर के राजा जी की बाउंड्री देखोगे मोतीचूर के बीच में, ये बहुत ही आवाजाही के लिए बहुत बड़ा हाईवे हो गया है और रात दिन यहाँ पे ट्रकें चलती हैं और रात में ट्रक वाले मॉर्निंग में ट्रक वाले रोक करके
सीधे सीधे जंगल क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं और वहाँ पर गुलदारों द्वारा इनको लिफ्ट किया जा रहा है। Tigers have made Bindu Khatta villagers to live in fear. After the tiger witnesses in the Lal Kuan Dolly range, villagers are forced to live in danger. Forest Department said that night vision camera will be set to keep an eye on tigress movement. गांव वालों की सूचना मिली कि गांव में गुलदार आया हुआ है, तो उनकी सूचना पर हम यहाँ पर मौके पर आए। हमने देखा कि हमने उनसे हिदायत दी कि यहाँ पर अंधेरे में मत निकलना बिना उजाले के, और हम इसमें जो है कैमरा लगा रहे हैं। यहाँ पे कैमरे लगाने के बाद जब कैमरे में दिखेगा तो फिर पिंजरा इजरा लगाएंगे हम। दो तीन दिन से बाघ यहाँ पर आया हुआ है, जो कि बच्चों का स्कूल जाना भी दुर्भर हो गया है। स्कूल भेजने में भी डर लग रहा है, क्योंकि खेत में गन्ने में बाघ है। वन विभाग की टीम भी हमारे सामने आई है इधर देखने को, पर किसान 3-4 दिन। Former Minister Manmohan Singh, who is considered one of the best finance ministers in the country, was the first leader from the opposition to make his point on the note ban debate in the Rajya Sabha. He said 60 to 65 people have lost their lives. What has been done can weaken our people's confidence in currency and banking system. And what is more is, what has been done can weaken and erode our people's confidence in the currency system and in the banking system. One, I would like to know from the Prime Minister the names of any countries he may think of where people have deposited their money in the banks, but they are not allowed. It's time for a short break.